We'll be discussing about the supracondylar fracture of humerus. Right? So humerus is the bone of the upper limb. We know that, है ना? This is most common fracture around the elbow in children. ठीक है? तो किसमें ज़्यादा कॉमन है? चिल्ड्रन में है. Fall on outstretched hand. So if you remember जब हमने कोली स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो वहाँ पे भी outstretched hand था. ठीक है? और वहाँ पे भी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी वाज हाइपर एक्सटेंशन. ठीक है? लेकिन वो किसमें कॉमन था? एल्डरली पीपल अबव द एज ऑफ 40 पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन. राइट? लेकिन जो आपका सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस है वो चिल्ड्रन में कॉमन है. ठीक है? और कोलेज वाला तो आपका डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर था. ठीक है? Now there is high risk of fracture in this area. Why? ठीक है. Now just imagine this is the humerus. ठीक है? Distal part. तो सुपीरियरली तो यहाँ पे ये ट्राइंगल शेप होती है इसकी ज्योमेट्री. ठीक है? लेकिन इंफीरियरली दिस ज्योमेट्री चेंजेस टू फ्लैट विद टू फोसा. एक आपका ऑलिक्रोनॉन है, दूसरा आपका कोरोनॉइड है. ठीक है? अब इस वजह से एक तो इसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई. ठीक है? आपने आपका ट्रायंगुलर था, अब वो फ्लैट हो गया, उसमें फोसा भी प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये थिन एंड वीक हो जाती है. ठीक है? टाइप्स क्या है इसके? एक्सटेंशन टाइप, एक फ्लेक्शन टाइप. ये सबसे ज़्यादा कॉमन है. डिस्टल फ्रेगमेंट गोज पोस्टीरियरली. सो इफ यू सी हो यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, ये जो फ्रेगमेंट था ये पीछे चला गया और ज़्यादातर यही देखने को मिलता है. क्यों? ड्यू टू द पुल ऑफ ट्राइसेप्स. ठीक है? अब पीछे को गया लेकिन पीछे को मीडियल तरफ भी जा सकता है, लेटरल तरफ भी जा सकता है. ठीक है? और अगर बाय चांस कभी रेयर केसेस में फ्लेक्शन टाइप हुआ तो उसमें आपका फ्रेगमेंट एंटीरियरली चला जाएगा. ठीक है? द क्लासिफिकेशन विच इज यूज्ड हियर इज गार्टलैंड क्लासिफिकेशन. अब जो हमारा टाइप 1 है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर. ठीक है? सो फ्रैक्चर तो हुआ है लेकिन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है एंड दिस विल नॉट बी विजिबल ऑन एक्सरे. तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? दिस इज डायग्नोस्ड बाय इनडायरेक्ट साइंस. ठीक है? तो एक साइन है फैट पैड साइन. फैट इज पुश्ड बाय द फ्रैक्चर हेमाटोमा, appears as lucency around the bone or sale sign, and the management includes POP. टाइप 2 आता है इनकम्प्लीट या पार्शियल फ्रैक्चर. अब इसमें पार्शियल फ्रैक्चर हो चुका है. ठीक है? लेकिन अभी भी only the anterior cortex is broken, लेकिन posterior cortex is intact with its periosteum. So the treatment would include to reduce plus POP or reduce plus K-wire. ठीक है? Type 3 complete fracture, both anterior and posterior cortex is injured, broken. क्या treatment रहेगा? Open reduction and internal fixation with K-wire. ठीक है? Then investigations we have X-ray in compound या open या comminuted fracture, Dunlop fracture is done. Displacements, 4 displacements होती हैं यहाँ पे present. PPMI. ठीक है? Proximal migration, posterior tilt and posterior shift. ठीक है? कैसा माइग्रेशन है? proximal migration और posteriorly दो चीजें हो रही है, tilt and shift. Then medial tilt and medial shift. ठीक है? And this part जो आपका medial tilt या medial shift अगर हुआ तो this can be assessed by Bowman's angle. And you should know अगर हमारा Bowman angle increase करता है तो हमारा carrying angle decrease करता है. ठीक है? And fourth displacement जो हो सकती है वो हो सकती है internal rotation and this will be visible on X-ray giving fish tail sign. Right? Complications, early complications and we have some late complications. Early में क्या है? Brachial artery की इंजरी हो सकती है. Nerve में हमारे anterior introitious nerve, median nerve and then radial nerve, compartment syndrome, Volkmann's ischemia, Volkmann's ischemic contracture. Late में क्या हो सकता है? Malunion. ठीक है? Malunion की वजह से क्या बन सकता है? Cubitus varus deformity या gun stalk deformity या decrease in carrying angle. And one more complication is very important, myositis ossificans. ठीक है? अब why there is decrease in the carrying angle? Due to medial tilt and internal rotation displacement. Elbow function is normal since the extra articular part is still intact, right? So the treatment here would include modified French osteotomy, or even if you write this much will be more than sufficient. So we were discussing about this complication, myositis ossificans. Now what happens due to the massage of the fracture? So fracture हुआ, आप हॉस्पिटल नहीं आए तो खुद ही सोचा कि पेशेंट ने क्या करेंगे, घर पे ही अच्छे से हाथ की मसाज करवा ली. ठीक है? अब क्या हुआ मसाज की वजह से? इट कॉजेज डिसलॉजमेंट ऑफ द फ्रैक्चर हेमाटोमा विच लैंड्स इन मसल. अब वो हेमाटोमा जो था फ्रैक्चर वाला साइड पे वो वहाँ से डिस्प्लेस हो गया, कहाँ चला गया? मसल्स में, बीच में चला गया. एंड मोस्ट कॉमन मसल इन्वॉल्व्ड इज ब्रेकियालिस. द प्रोसेस ऑफ हीलिंग स्टार्ट्स. हेमाटोमा, inflammation, callus formation, consolidation. So basically you have a bone formation inside a muscle, right? If we look at the management of supracondylar humerus fractures, those who are presenting without pulse, so we have to do then emergency closed reduction and pin stabilization till there is return of the palpable radial pulse. अगर तो पल्स आ गई है सो रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव केयर. अगर नहीं आई है सो वी विल सी वेदर एरियाज इज पिंक एंड परफ्यूज्ड. तो अभी तक है मान लो. ठीक है? एंड देयर इज पॉजिटिव रेडियल आर्टरी डॉपलर. तो इसका मतलब कोई भी मीडियन नर्व की इंजरी नहीं हुई है. ठीक है? नाउ सो दिस पेशेंट इज केप्ट इन ऑब्जर्वेशन एंड क्लोज मॉनिटरिंग फॉर वैस्कुलर स्टेटस एंड साइंस ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम. लेकिन आपका रेडियल आर्टरी डॉपलर एब्सेंट आ गया तो मतलब मीडियन नर्व की इंजरी हुई है. और अगर आपका पल्स अभी भी नहीं आया इमरजेंसी क्लोज रिडक्शन एंड पिन स्टेबलाइजेशन के बाद, ठीक है, अभी भी एरिया पेल एंड अनपरफ्यूज्ड है तो इमीडिएट आर्टीरियल एक्सप्लोरेशन हैज टू बी डन.